یہ زمانہ اسلامی شہروں کے لیے ایک خونی سایہ بن چکا تھا۔ شیخ الجبل کے جاسوس ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر میں پھیل گئے، جیسے زہر رگوں میں سرایت کر جائے۔ کوئی خاندان، کوئی مکان ان کی فہرست مقتولین سے محفوظ نہ تھا۔ امراء نے اباؤں کے نیچے زرہیں پہن لیں اور سلطان نے دربار میں اسلحہ لانے کی اجازت دے دی۔ خوف اتنا گہرا تھا کہ کوئی شخص اکیلا گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا، اور جو مقررہ وقت پر واپس نہ آتا سمجھ لیا جاتا کہ وہ باطنی خنجر کا شکار ہو چکا ہے۔ لوگ اس کے مکان پر عزاداری کے لیے جمع ہو جاتے اور ہر قدم کے ساتھ موت قریب تر محسوس ہوتی۔ یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام سانس لیتے ہوئے بھی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ کے 3 بیٹے تھے، برقیارک، محمد اور سنجر۔ جیسے ہی سلطان کی آنکھیں بند ہوئیں، سلجوقی سلطنت کے سینے میں خانہ جنگی کا خنجر اتر گیا۔ بھائی بھائی کے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے اور اقتدار کی ہوس نے ریاست کی جڑیں ہلا دیں۔ آخرکار 492 ہجری میں علماء نے مداخلت کی اور برقیارک اور محمد کے درمیان ایک ناپائیدار مصالحت کروا دی گئی۔ شام، عراق، موصل، آذربائیجان اور آرمینیا محمد کے حصے میں آئے، جبکہ باقی مملکت برقیارک کے تصرف میں دے دی گئی۔ مگر یہ صلح ریاست کو جوڑنے کے بجائے ایک اور خطرے کے لیے زمین ہموار کر گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حسن بن صباح نے سر اٹھایا۔ سلجوقی دربار خانہ جنگیوں میں الجھا رہا اور حسن بن صباح خاموشی سے اپنی جڑیں پھیلاتا چلا گیا۔ محض 8 برس کے اندر اندر وہ رودبار، کہسان، خور، خوسف، قائن، زوزن اور تون پر قابض ہو چکا تھا۔ جب سلطان ملک شاہ کے فرزند اکبر برقیارک کو خانہ جنگی سے کچھ مہلت ملی تو علماء اور عوام کی فریاد اس کے کانوں تک پہنچی۔ چنانچہ 494 ہجری میں اس نے باطنیوں کے قتل کا فرمان جاری کر دیا، اور پھر خون کا دروازہ دونوں طرف سے کھل گیا۔ ہر شہر، ہر کوچہ باطنیوں کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ لیکن جب یہ خبر قلعہ الموت پہنچی تو حسن بن صباح سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ اس نے حکم دیا مسلمانوں کے قتل میں پہلے سے زیادہ تیزی دکھائی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک باطنی کے بدلے 10 مسلمانوں کی جانیں لی جانے لگیں، مگر تب بھی ابن صباح کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ایک دن ایک مؤذن کو اس کے باطنی ہمسائے نے دبوچ لیا۔ مؤذن کے گھر کی عورتیں چیخو پکار کرنے لگیں۔ باطنی نے چھری دکھائی اور اسے چھت پر لے گیا۔ مؤذن اپنے گھر کی دہائی سن رہا تھا، مگر اتنا مروب ہو چکا تھا کہ زبان تک ہل نہ سکی۔ اتنے میں پولیس ابر رحمت کی طرح آ پہنچی، باطنی گرفتار ہوا اور مؤذن ظلم کے پنجے سے بچ گیا۔ اصفہان میں اس فرقے نے سب سے زیادہ دہشت پھیلا رکھی تھی۔ مسلمان غائب ہوتے مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ آخر اہل اصفہان نے ان مقامات کی تلاش شروع کی جہاں یہ اندھیر نگری قائم تھی۔ ایک مکان میں ایک عورت ملی جو ہر وقت ایک بوریا پر بیٹھی رہتی تھی۔ لوگوں نے اسے گھسیٹ کر ہٹایا، بوریا اٹھایا تو نیچے ایک گڑھا تھا جس میں 40 مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ عوام کا غصہ پھٹ پڑا، عورت کو قتل کیا گیا اور مکان کو آگ لگا دی گئی۔ ایک اور جگہ کسی باطنی کے گھر اجنبی کپڑے ملے۔ شہر میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے دھاوا بولا تو ایک کنواں لاشوں سے بھرا ہوا ملا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پورا کوچہ باطنیوں کا اڈا تھا۔ دروازے پر ایک اندھا بیٹھتا، راہگیروں سے لاٹھی پکڑانے کو کہتا اور اندر پہنچتے ہی باطنی بھیڑیے شکار کو کھینچ لیتے۔ لاشیں کنووں میں پھینک دی جاتیں۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ مسعود بن محمد خجندی فقیہ شافعی انتقام پر آمادہ ہوئے۔ ایک ہجوم ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شہر سے باہر آگ کے گڑھے کھودے کھڑے، باطنی پکڑ پکڑ کر لائے گئے اور زندہ آگ میں جھونک دیے گئے۔ شہر اہر کے قریب قلعہ وسم کوہ بھی باطنیوں کے قبضے میں تھا۔ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کو قتل کرتے اور لوٹ مار کر کے قلعے میں جا چھپتے۔ آخر مظلوموں کی فریاد سلطان برقیارک تک پہنچی۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کیا اور
8 माह की जद्दोजहद के बाद उसे फतह कर लिया। इराक में भी बातिनियों ने क़यामत बर्पा कर रखी थी। बेशुमार कलिमा गो खाक व खून में तड़पाए गए। इन्हीं शुहदा में अहले सुन्नत के जलीलुल क़द्र आलिम शेख शाफ़ई अबुल फ़रज राज़ी दयानी साहिबुल बहर भी शामिल थे, जिन्हें दारुल खिलाफा बगदाद में एक बातनी ने शहीद कर दिया। अब खौफ सिर्फ उमरा तक महदूद न रहा। आम मुसलमान भी कपड़ों के नीचे ज़रहें पहनने लगे। 498 हिजरी में बातनिया तरतासीस से निकलकर रै पहुंचे और हुज्जाज के उस काफिले को लूट लिया जिसमें खुरासान, मावराओ नहर और हिंदुस्तान के ज़ायरीन शामिल थे। इसके बाद रै के नवाह में आम कत्लो गारत शुरू हो गई। बेशुमार मुसलमान मारे गए और काफिले का सारा माल लुट गया। और फिर 499 हिजरी में एक बातिनी मोहम्मद नामी ने जामिया मस्जिद अस्फहान में काजी अबुल अला साइद बिन अबू मोहम्मद नैशापुरी को शहीद कर दिया। ये वो जख्म था जो वक्त ने नहीं भुलाया। हसन बिन सबाह ने 485 हिजरी में अपने ही मोहसिन सल्जूकी सल्तनत के सुतून ख्वाजा निज़ामुल मल्क तूसी को खंजर का तोहफा दिया था और तकरीबन 15 बरस बाद 500 हिजरी में इसी घराने का एक और चिराग बुझा दिया गया। ये चिराग था ख्वाजा फ़ख्रुल मुल्क अबुल मुज़फ़्फ़र अली, ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के फ़र्जंद अकबर और सुल्तान संजर बिन मलिक शाह सल्जोकी के वज़ीर। वो दिन यौम आशूरा था। फ़ख्रुल मुल्क ने रोज़ा रखा हुआ था। सुबह के वक्त उन्होंने अपने करीबी अहबाब से कहा, आज रात मैंने ख्वाब में हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है। आप मुझसे फरमा रहे थे, जल्दी आओ ताकि हमारे पास आकर ही रोज़ा इफ्तार करो। फिर खुद ही बोले, क़ज़ाए इलाही से कोई मफ़र नहीं, जो कुछ उस ज़ात बरतर ने मुक़द्दर कर दिया वो होकर रहता है। अहबाब के दिल कांप उठे। उन्होंने अर्ज़ की, खुदा आपको सलामत रखे, आज दिन रात घर से बाहर ना जाएं। मगर फ़ख्रुल मुल्क किस्मत की तहलीर पढ़ चुके थे। वो पूरा दिन नमाज और तिलावत कुरान में मसरूफ़ रहे, कसरत से सदका व खैरात किया, गोया अपने आखिरी दिन को इबादत की खुशबू में लपेट रहे हों। असर के वक्त वो मर्दाना मकान से निकले और हरम सराय जाने का कस्त किया। अभी चंद कदम ही बढ़े थे कि एक शख्स ऊंची आवाज में चीखा, सब मुसलमान खत्म हो गए, कोई नहीं रहा जो मुझ मजलूम की फरियाद सुने। फहरुल मुल्क रहमत दिल के पैकर थे। उन्होंने इस शख्स को अपने करीब बुलाया और पूछा, तुम पर किसने जुल्म किया है? उसने एक तहरीरी अर्जदाश्त निकाली और फखरुल मुल्क के हाथ में थमा दी। वजीर जैसे ही तहरीर पढ़ने लगे, अचानक वो फरियादी, जो दरअसल एक बातनी सफ़ाक था, ने पेट में खंजर घोंप दिया। खून बहा और सल्जोकी सल्तनत का वजीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ख्वाजा फखरुल मुल्क उसी लम्हे जामे शहादत नोश कर गए। ये खबर सुल्तान संजर तक पहुंची तो दरबार पर सख्ता तारी हो गया। दिल पर ऐसा सदमा उतरा कि अल्फाज साथ न दे सके। कातिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। बातनी ने सोचा, जब मरना ही है तो चंद और मुसलमानों को भी अपने साथ ले चलूं। जब उसे सुल्तान संजर के सामने पेश किया गया तो बोला, मुझे कत्ल पर आपके ही चंद मुसाहिबों ने उकसाया था। सुल्तान गम और गुस्से के आलम में अंधा हो चुका था। तहकीक से पहले ही उन बेगुनाह मुसाहिबों को कत्ल करा दिया और फिर आखिरकार उस बातनी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मगर ख्वाजा फखरुल मुल्क की शहादत सल्जूकी दरबार से ज्यादा आलम इस्लाम के दिल पर गिरा थी। ये सिर्फ एक वजीर का कत्ल नहीं था, ये इस बात की गवाही थी कि हसन बिन सबाह का खंजर अब ख्वाबों, इबादतों और आशूरा की हुर्मत तक को नहीं बख्शता था। हसन बिन सबाह अकेला नहीं था, उसके पीछे एक पूरी फिक्री जंजीर थी। उसका इस्माइली उस्ताद अब्दुल मलिक बिन अत्ताश था और उसका बेटा अहमद बिन अब्दुल मलिक, जो अस्फहान के करीब क़िला शाहवर का हाकिम था। ये अहमद मुसलमानों के खिलाफ वैसी ही आग भड़का रहा था जैसी क़िला अलमौत से उठसी थी। जब ये खबरें सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह तक पहुंची तो इस बार हुक्म कागज पर नहीं लिखा गया, बल्कि सुल्तान खुद मैदान में उतरा। 500 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद बनफ्स नफीस क़िला शाहवर पर चढ़ दौड़ा। ये किला पहाड़ से तकरीबन 6 कोस के फासले पर था
और हसन बिन सबाह के हुक्म पर इसे इस कदर मजबूत बनाया गया था कि गोया चट्टान के अंदर चट्टान बिठा दी गई हो। सुल्तान ने लश्कर के उमरा को बारी बारी हमलों के लिए रवाना किया। जल्दबाजी नहीं की, बल्कि हज़्म और एहतियात के साथ मुद्दतों दबाव बरकरार रखा। मुहासरा लंबा होता गया, जंग की शिद्दत बढ़ती गई और पहली बार बातिनी घबरा गए। जब किले की दीवारें टूटने लगीं तो बातिनियों ने एक और चाल चली। उन्होंने फ़ुक़हाए अहले सुन्नत व जमात को एक ख़त लिखा। ख़त में सवाल था, ए सादात फ़ुक़हा व अइम्माए दीन, इस गिरोह के बारे में क्या हुक्म है जो अल्लाह, क़यामत और उसके रसूलों पर ईमान रखता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता है, मगर सिर्फ मसला इमामत में इख्तिलाफ रखता है। क्या सुल्तान वक्त के लिए ऐसे गिरोह से मुआफ़क़त जायज़ है? और अगर ये इताअत कबूल कर ले तो क्या शरअन इसे हर अज़ियत से बचाना वाजिब हो जाता है? ये सवाल महज फतवा नहीं था, ये मोहलत खरीदने की कोशिश थी। कुछ उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया, कुछ ने खामोशी इख्तियार की। मगर फिर फ़ुक़हाए अहले सुन्नत एक मजलिस में जमा हुए और वहाँ एक फ़ैसला कुन आवाज़ उठी। ये आवाज़ थी शेख अबुल हसन अली बिन अब्दुर्रहमान समंजानी की, शाफ़ी फ़िक़्ह के जलीलुल क़द्र आलिम। उन्होंने साफ और दो टोक कहा, बातिनिया के लिए महज ज़ुबान से इक़रार और शहादतैन का तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं। फिर उन्होंने बातिनियों के अक़ीदे की जड़ पर हाथ रखा। अगर उनसे पूछा जाए कि अगर तुम्हारा इमाम हराम को हलाल कर दे और हलाल को हराम ठहरा दे तो तुम शरीयत मानोगे या इमाम का हुक्म? और जवाब खुद बातिनियों की ज़ुबान से आता था, हम इमाम के हुक्म को हक समझेंगे। शेख समंजानी ने ऐलान किया, ऐसी सूरत में बातिनिया का कत्ल बिल-इत्तिफ़ाक़ मुबाह है। ये फतवा बातिनी किलों की दीवारों से ज़्यादा मजबूत था। बातनियों ने जब ये सुना तो एक बार फिर वक्त खरीदने की कोशिश की। उन्होंने सुल्तान से कहा, अपने उलमा को हमारे मजहबी पेशवाओं से गुफ्तगू के लिए भेज दीजिए। सुल्तान मोहम्मद ने काजी अबुल अला साइद बिन अबी शेख अल हनफी, काजी अस्फ़हान को चंद उलमा के साथ रवाना किया, मगर बातनियों का मकसद मुज़ाकरा नहीं था, सिर्फ टाल मटोल थी। वो बातों को घुमाते रहे, हीले बहाने बनाते रहे। आखिरकार उलमा वापस लौट आए और ये बात खुलकर सामने आ गई कि बातनिया ना सुलह चाहते थे ना इस्लाह, बल्कि सिर्फ वक्त। और जब वक्त ख़त्म हो जाए तो किले भी बच नहीं पाते। उलमा की वापसी के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह ने नरमी की चादर उतार दी। अब मुहासरा सिर्फ दीवारों का नहीं था, ये हौसलों का मुहासरा बन चुका था। किला शाहवर के अंदर बातनियों ने पहली बार अपनी सांसें टूटती महसूस की। आखिरकार वो अमान के ख्वास्तगार बने। बातनियों की दरख्वास्त ये थी, इस किले के बदले हमें किला खालंजान अदा कर दिया जाए और वहाँ मुंतकिल होने के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। ये किला अस्फ़हान से तकरीबन 10 कोस के फासले पर था। कभी बातनी इस पर काबिज हो चुके थे, मगर फिर निकाल दिए गए थे। सुल्तान मोहम्मद ने ये दरख्वास्त कबूल कर ली। बातनी अपना मालो असबाब समेटने लगे, लेकिन अभी मोहलत पूरी ना हुई थी कि चंद बातनियों ने सुल्तान मोहम्मद के एक अमीर पर खंजर उठा लिया। किस्मत ने साथ दिया, वो अमीर बच निकला। ये खबर सुल्तान के कानों तक पहुंची तो एतमाद टूट गया। इसी लम्हे मुहासिरा असरे नौ शदीद कर दिया गया। चला एक बार फिर मौत के हल्के में आ गया। बातनियों को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उन्होंने नदामत जाहिर की और एक नई दरख्वास्त रखी। उन्होंने कहा, हमें किला नाजिर व तबस जाने की इजाज़त दी जाए। सुल्तान अपने चंद फौजी दस्ते हमारे एक हिस्से को वहां तक पहुंचा दें और बाकी लोगों को एक गोशे में नज़रबंद रखा जाए। जब पहला दस्ता किला नाजिर पहुंच जाए तो जो अफराद यहाँ महबूस हैं उन्हें हसन बिन सबाह के किला अलमौत भेज दिया जाए। ये दरख्वास्त एतमाद की नहीं बल्कि बेबसी की सदा थी। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी फराख दिली से उसे भी मंजूर कर लिया। चुनांचे बातनियों का पहला दस्ता शाही फौज की निगरानी में किला नाजिर व तबस की तरफ रवाना हुआ।
और इसी लम्हे सुल्तान का हुक्म गूंजा, किला मुस्मार कर दिया जाए। शाही फौज ने इस हुक्म पर एक लम्हा ज़ाया ना किया। दीवारें गिरीं, बुर्ज टूटे और वो किला जो कभी बातनी दहशत की अलामत था, मिट्टी में मिलने लगा। ये सिर्फ एक किले का इन्हिदाम नहीं था, ये हसन बिन सबाह के दायरे खौफ में पहली बड़ी दरार थी। और जब किले गिरने लगे तो नाम भी बच नहीं पाते। ये वो लम्हा था जब पर्दों के पीछे छुपे चेहरे रोशनी में घसीटे गए। हसन बिन सबाह के उस्ताद अब्दुल मलिक बिन अत्ताश का बेटा अहमद बिन अत्ताश किले के एक बुर्ज में जान बचाकर छुपा हुआ था। अचानक चंद सिपाही दौड़ते हुए सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह के पास पहुंचे और उस महफूज मकाम की खबर दे दी जहां अहमद रोपोश था। सुल्तान के इशारे पर एक अफसर चंद सिपाहियों को लेकर बुर्ज पर चढ़ गया। जो भी बातिनी वहां मिला सबको वहीं कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन की तादाद इसी बयान की जाती है। आखिरकार अहमद बिन अत्ताश गिरफ्तार होकर सुल्तान के सामने लाया गया। सुल्तान ने तंज के साथ कहा, तुम तो कहा करते थे कि अवाम व खवास तुम्हारे गिर्द जमा होंगे और इस्फहान में तुम्हारी अजमत व शौकत का नकारा बजेगा। वो पेशीन गोई कहाँ गई? अहमद ने ना झिझका ना नजरें झुकाईं। बोला, मेरी पेशीन गोई झूठी नहीं थी, मगर बरतरीक़े हुकूमत नहीं बल्कि बरतरीक़े फजीहत। सुल्तान ये सुनकर हंस पड़ा। फिर हुक्म हुआ, अहमद बिन अत्ताश को इस्फहान के कूचा व बाजार में घुमाया गया और आखिरकार वहीं उसे हलाक कर दिया गया। इसी के साथ उसका जवान बेटा भी कत्ल कर दिया गया। दोनों के सर काटकर दारुल खिलाफा बगदाद भेज दिए गए। ये मंजर देखकर अहमद की बीवी सब्र ना कर सकी। वो एक बुलंद मकाम से नीचे कूद गई और जान दे दी। मगर दास्तान यहीं ख़त्म ना हुई। सुल्तान मोहम्मद का वज़ीर सादुल मलिक, जो पर्दा राज में अहमद बिन अत्ताश का मुआविन व मददगार था, सुल्तान के कत्ल की साजिश में मुलव्विस पाया गया। चुनाचे उसे भी फांसी दे दी गई। गालिबन वो भी बातिनी ही था। सादुल मुल्क की हलाकत के बाद सुल्तान ने वजारत का कलमदान ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के खल्फ अबू नस्र अहमद के सुपुर्द कर दिया। 503 हिजरी में अबू नस्र अहमद बजाते खुद फौज लेकर किलाए अलमौत पर चढ़ दौड़ा, मगर माली किल्लत और सख्त हालात ने उसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। फिर 8 साल बाद 511 हिजरी में किलाए अलमौत पर दोबारा फौजकशी हुई। इस मुहिम का कायद था अमीर नौसिंगीन शेरगीर। पूरा 1 साल मुहासरा जारी रहा। रसद खत्म हो गई। किले के अंदर बदहाली नाकाबिले बयान हद तक पहुंच गई। आखिर हसन बिन सबाह ने औरतों और बच्चों को अमान की दरख्वास्त के साथ सुल्तान मोहम्मद के पास भेजा, मगर अब इब्ने सबाह की फहरिस्त जराइम इतनी तवील, इतनी खूनी और इतनी संगीन थी कि किसी रियायत की गुंजाइश बाकी न रही। सुल्तान ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर यहाँ तारीख ने एक और मोड़ लिया। अभी किला फतह होने ही वाला था कि क़ज़ा व क़दर ने अपना हुक्म सुना दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह अचानक आगोश लहद में सुला दिया गया। फ़ौज मुहासरा उठाकर वापस लौट आई और किलाए अलमौत बदस्तूर बातनी हयात के तसर्रुफ़ में कायम रहा। तारीख़ के सफ़हात आज भी इंसाफ और दहशत के दरमियान लरसते हैं। इब्ने सबाह का साया अब भी किलाए अलमौत पर कायम है और जो हुआ वो सिर्फ इब्तिदा थी। क्या सुल्तान की मौत किला की तकदीर बदल सकेगी, या हसन बिन सबाह की चालें अब भी आलम इस्लाम के दिलों पर साया डाल रही हैं? आए जाने पार्ट 6 में वो राज जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान छुपा है। यहाँ हर फैसला तारीख़ के सीने में गूंजेगा और हर मंजर आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। पासबान हराम हसन बिन सबाह पार्ट 6 जल्द आ रहा है।